میرے عزیزان ملت اسلامی السلام علیکم۔ میرے بھائی ذرا غور کرو، ہندوستان میں بلکہ نہیں پورے ملک میں، پوری دنیا میں مسلمانوں کو ختم کرنے کا منصوبہ اور مسلمانوں کو مٹانے کا منصوبہ بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس میں اگر سب سے زیادہ خاموشی کوئی اختیار کیا ہے تو ہندوستان کا مسلمان ہے، بھارت کا مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان بھارت کا اتنا بے بس ہو چکا ہے، ہندوستان کا مسلمان غلامیوں میں اتنا جکڑ چکا ہے، مسلمان بھارت کا اتنا دلالیوں میں مبتلا ہو چکا ہے، یہ ذرا بھی دین کا خبر نہیں، اسلام کی خبر نہیں، مسلمانوں کی خبر نہیں، غریب مظلوموں کی خبر نہیں۔ میرے بھائی، آج تیزی کے ساتھ ہندوستان میں مسلمانوں کو ختم کرنے کا، مٹانے کا منصوبہ کس طریقے سے اپنایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے رننیتیوں کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، ذرا غور کرو، جو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ کل دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے، یاد رکھو تمہارے ساتھ بھی ہوگا اور جلد سے جلد ہوگا، کیونکہ ایک سنسد کا گھر کا سیف نہیں رہ سکتا ہے، اور ایک سنسد کا گھر مکمل طور پہ بہتر نہیں رہ سکتا ہے اور سیفٹی نہیں رہ سکتا ہے، تو میں کیا سمجھوں بھارت کا مسلمان کا گھر سیف رہے گا اور بہتر رہے گا۔ اس میں مسلمانوں کو سوچنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، جس ٹاپک میں آپ کے سامنے مخاطب ہوا ہوں وہ آسام کا ہے۔ بہت درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں میرے پیارے مسلمانوں، ذرا غور کرو، سوچنے اور سمجھنے کی بھی حد ضروری ہے۔ آج ہمارے حالات کو کون سلجھائے گا؟ آج ہمارے مستقبل میں کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہم کو بے حد سوچنا اور سمجھنا، اس چیز پر مخاطب ہو کر کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ مسلمانوں کے گھروں میں انگار لگائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو بربادی اور تباہی کے مظاہرے بلکہ شروع نہیں کیا گیا ہے بلکہ تیار کر لیا گیا ہے۔ بھارت کا جو مسلمان ہے اتنا خاموشی اختیار کیا ہے، اتنا بے بس نظر آ رہا ہے کہ اپنے آپس میں اس طریقے سے مکمل مقصود ہو چکا ہے کہ ذرا بھی اس چیز سوچنے کے لیے اس کو ٹائم نہیں ہے کہ ہمارے حالات کس طریقے سے کدھر روانہ ہو رہے ہیں اور کدھر بڑھ چکے ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں، آج بہت تکلیف اور بہت آج تڑپ مجھے محسوس ہو رہی ہے، اپنے مسلمانوں کا قتل عام دیکھ کر، اپنے مسلمانوں کی خون کو دیکھ کر، اپنے مسلمانوں کی اس بربادی اور تباہی کو دیکھ کر میں کیا بیاں کروں۔ اللہ نے مجھے جو لائق بنایا ہے میرے پیارے مسلمانوں، میں چاہے ٹوٹی الفاظ بولوں یا کٹی الفاظ بولوں، جو مجھے اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہے اتنا میں آپ کے درمیان میں بول کر، اپنی باتوں کو رکھ کر اپنے دل کو میں تسلی پہنچا لیتا ہوں، سکون محسوس کر لیتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے سکون محسوس نہیں ہوتا ہے، سکون نہیں ملتا ہے۔ لیکن میرے پیارے مسلمانوں، آج تم اتنا بے بس ہو گئے ہو، آج تم اتنا کمزور ہو گئے ہو، آج تم اتنا لاچار ہو گئے ہو کہ تمہارے نبی کی کس طریقے سے، تمہارے دین کی، تمہارے شریعت کی کس طریقے سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تمہارے نبی کی ناموس پر کس طریقے سے حملہ کیا جا رہا ہے، تمہارے نبی پر کس طریقے سے ظالم حکمرانوں نے نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن آج بھارت کا مسلمان خاموش اور بے بس نظر آ رہا ہے۔ کیا اس میں آواز اٹھانا ہم لوگ کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، جس طریقے سے ہوٹلوں میں گاجر موریوں کو قطرے جاتے ہیں، اسی حال اور اسی طریقے سے تمہارا حال ہونے والا ہے اگر تم دلالی نہیں چھوڑو گے، اگر تم اپنے مستقبل میں خاموشی اختیار کیے رہو گے، اگر تم اپنے دیش میں اگر ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے۔ یاد رکھو میرے پیارے مسلمانوں، ہماری اس بات سے ذرا غور کرو کہ آسام کا کیا حالت ہو چکا ہے، اور بلکہ آسام کا نہیں، کشمیر بھی ابھی ہم کنٹینیو دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہو چکا ہے۔ ہم کشمیر سے بھی سبق سیکھیں گے، ہم آسام سے بھی سبق سیکھیں گے، لیکن آج مسلمان اس چیز کو نہیں سوچ رہا ہے۔
हम ये नहीं बोलते आप जंग करो, हम ये नहीं बोलते आप उनसे लड़ो। जमहूरियत में संविधान ने जिस चीज को तुमको इख्तियार दिया गया है उस चीज को हासिल करके अपनी आवाज को बुलंद तो करो, अपने हक को बुलंद तो करो, अपने हक में आवाज तो उठाओ। लेकिन मुसलमान ये सोच रहा है उनके ऊपर हो रहा है, ये तुम्हारी गलत फहमी है मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों। ये तुम्हारे ऊपर भी होने वाला है, जल्द से जल्द तुम्हारे ऊपर होने वाला है। जल्द से जल्द तुमको खत्म करने का, तुमको मिटाने का मंसूबा कहीं ऐवानों में नहीं, कहीं होटलों में नहीं, कहीं चौराहों में नहीं बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं, संसद में बनाए जाते हैं, और जितना सियासी प्लेटफॉर्म पर ये सब तुम्हारे मंसूबे को बनाकर तैयार किया जाता है। आज मुसलमान इस चीज को नहीं सोच रहा, आज मुसलमान इस चीज को नहीं समझ रहा है कि आज उसको करना क्या है, आज उसको किस तरीके से उसको अपने आप को बचाना है। हम ये नहीं बोलते तुम जंग करो, जमहूरियत ने जिस चीज को तुमको इजाजत दी है वो काम करो, संविधान जिस चीज को तुमको इजाजत दिया, हक दिया, वो काम करो। आज यूपी के मुसलमानों का, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के दिमाग में, उनके दिमाग में ऐसी गाय की चर्बी जम गई है, ऐसे सुअर का गोबर जम चुका है, ऐसे उनके दिमाग में कुत्ते का गोबर जम चुका है, ऐसे उनके दिमाग में भैंस का गोबर जम चुका है कि जरा भी इसके गैरत नहीं आती है कि आज वो ये चीज बोलता है कि हमारी नस्लों से चली आ रही है, हमारी नस्लों से चली आ रही है, हम उनको ही वोट देंगे। आज जो क्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए, हम उनको ही वोट देंगे, हम उनको ही जिताएंगे। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों जरा गौर करो, मेरे भाई, मैं ये नहीं चाहता हूं कि हमारा मुसलमान भाई कटे, हम ये नहीं चाहते कि हमारा मुसलमान भाई बर्बाद हो, हमारा इस्लाम बर्बाद हो, हमारे नामूस पर हमला हो, हम ये नहीं चाहते। लेकिन हम अपने प्यारे मुसलमानों को जो सो रहे हैं उनको उठाना चाहते हैं कि हालात तुम्हारे नजरों के सामने है, हर चीज तुम्हारे नजरों के सामने है। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम, किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम, और क्या देखोगे? तुम्हारे बहन पर, तुम्हारे भाई पर, तुम्हारे घरों पर हमला हो रहे हैं। हम ये नहीं बोलते कि तुम झगड़ा करो, जंग करो, हम ये नहीं बोलते हैं। हम ये बोलते हैं कि जमहूरी तौर पर जमहूरियत ने हमको जिस चीज का इजाजत दिया है उसको इस्तेमाल करो, संविधान को इस्तेमाल करो। जब तक मेरे प्यारे मुसलमानों तुम सियासी प्लेटफॉर्म पर नहीं आकर जमा होंगे, तुम सियासत प्लेटफॉर्म पर नहीं आकर खड़े होंगे, तब तक तुम्हारे मुस्तकबिल में हल नहीं होंगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी का सही जो मकसद और मतलब है हल नहीं होगा। अगर आज मुसलमान इस चीज को सोच रहा है, जो कुछ मुसलमान हैं, मुनाफिक लोग हैं, दलाली करके आज हमारे इस्लाम को कमजोर कर दिए, आज हमारे मुसलमानों को कमजोर कर दिए, आज हमारे मुसलमानों को कटने के गाजर मूरियों की तरह कटने पर मजबूर कर दिए। अल्लाह उनकी जिंदगी को नातो नाबूद कर दे, उनकी खानदान को, उनकी नस्लों को नातो नाबूद कर दे। जो आज मुसलमानों के साथ ये सुलूक मुसलमानों ने करवाया है, आज इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होगा। क्यों आज हालात ऐसे क्यों बना दिए गए हैं, इसका जिम्मेदार मुसलमान होगा। आज क्यों नहीं अपने सियासी प्लेटफॉर्म को पहचान रहे हो? आज चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर गले को फाड़ दिया जा रहा है कि मेरे प्यारे मुसलमानों तुम एक हो जाओ, मेरे प्यारे मुसलमानों तुम एक हो जाओ। लेकिन मुसलमान इल्जाम लगा रहा है, बी टीम है, सी टीम है, आज दुनिया उसी का फायदा उठा रहा है कि मुसलमान तो बढ़ चुका है, मुसलमान तो कट चुका है। मुसलमानों को एक करना, मुसलमानों को जोड़ना कोई मामूली काम नहीं है, ये नहीं हो सकता है। और मुसलमानों को बर्बाद कैसे किया जाए, मुसलमानों को तबाह कैसे किया जाए, ये कैसा किया जाए। आज वो चीज तुम्हारे अफसाने हैं। याद रखो, मेरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से मैं अपील कर रहा हूँ, जो अपने जहन में ये चीज बैठा के रखे हो, जब वो एक अपने एमपी का साथ नहीं दे सकता है, जिस अखिलेश की बात कर रहे हो तुम, उस अखिलेश की मैं बात कर रहा हूं, अपने एमपी को नहीं छुटा सकता है, अपने नेता को नहीं छुटा सकता, अपने नेता के हक में वो लड़ नहीं सकता है, तो तुम्हारे साथ क्या करेगा? वो तुम्हारे हक में क्या इंसाफ करेगा? आज इसको मुसलमान नहीं सोच रहा है। और ये गोबर जो जम गई है उनके दिमाग में, वो हमारा नस्लों से चला रहा है, हम परंपरा चला आ रहा है, हम उनको ही वोट देंगे। ये अपने दिमाग से ये चर्बी निकाल दो, ये जो गोबर जमा हुआ है इसको निकाल दो। हिंदुस्तान की जो सियासत है वो बदल चुकी है, हिंदुस्तान का जो माहौल है वो बदल चुका है। आज हालात देखो कि मुसलमानों को किस तरीके से आसाम का जो मंत्री है, आसाम का जो एसपी आईपीएस है, किस तरीके से गोली चलवाता है, और पुलिस वालों को गोली चलाना और पुलिस वालों को इजाजत देना गोली चलाने का।
ये आदेश नहीं है हमारे संविधान में। और आदेश अगर बहुत मुश्किल में आदेश दिया गया है कि जब अगर ज्यादा हालात बिगड़ गए हैं, हालात ज्यादा खराब हो गए हैं कि उसको संभालना, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तब जाकर तुम गोली कहाँ चलाओगे? पैर पे चला सकते हो, हाथ पे मार सकते हो, पैर पे मार सकते हो, और किसी जिस्म कोई धड़ पर तुमको मारने की इजाजत नहीं है। आज आसाम का पुलिस एक गरीब, एक मजलूम को, एक मुसलमान के सीने पर गोली दाग देता है, और गोली दागने के बाद वो खत्म हो जाता है, शहीद हो जाता है। और एक जो टीवी का एंकर अपने आप को दलाल बोलते हैं, पुलिस वालों के सामने उसके शहीदाना जिस्म को किस तरीके से वो मारता है, किस तरीके से उसको मारता है मेरे भाई। जो मर चुका होता है, जो खत्म हो जाता है मेरे भाई, उसको मारता है। अपने आप को टीवी का एंकर बोलता है, अपने आप को मीडिया चैनल वाला बोलता है, पुलिस वालों के नजरों के सामने एक मरे हुए इंसान को मारता है। आज क्या मुसलमान इसको सोचकर नहीं उठेगा, नहीं मुखातिब होगा तो क्या करेगा? हालात बहुत खराब होने वाले मेरे प्यारे मुसलमानों, जरा गौर करो। यूपी के सियासत में तुम अपने आप को पहचानो, छोड़ दो समाजवादी को, ये तुम्हारे हक में इंसाफ नहीं करेगी। तुम अपने आप को पहचानो कि हमारा मुस्तकबिल कहाँ है, हमारा हक कहाँ है। आज देखो हालात मैं तुम्हारे नजरों के सामने बताता हूँ मेरे भाई। सुबह जैसे ही ग्रुप खोला मेरे भाई, वैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई। हमारे हालात खराब हो गए, हमारी दिमाग खराब हो गई, हमारे दिल में दर्द, इतनी तकलीफ महसूस हो रही है कि मैं किस तरीके से अपने दिल की तकलीफ और दर्द को मैं अपने प्यारे मुसलमानों को सामने रख दूं। देखिए ये हालात। मेरे प्यारे मुसलमानों, क्या आपके दिल में तकलीफ नहीं होती? क्या ये चीज देखकर अफसोस नहीं होता है कि मरे हुए इंसान को भी नहीं छोड़ा जा रहा है हमारे मुल्क में? मरे हुए इंसान को किस तरीके से कूटा जा रहा है। आज मुसलमानों के दिल में इस चीज की तकलीफ नहीं हुई? अगर ये वीडियो देखने के बाद जिस मुसलमानों के दिल में अगर तकलीफ ना महसूस हुआ हो, वो इंसान, वो मुसलमान नहीं कहलाएगा, वो राक्षस कहलाएगा, वो मुनाफिक कहलाएगा। जिसके दिल में इंसानियत ना हो, जिसके दिल में तड़प ना हो, दर्द ना हो। और हम ये बोलते हैं अपने प्यारे मुसलमानों को, जो टीवी, फिल्म, पिक्चर देखते हो उसको छोड़ दो, यूट्यूबर बनो, न्यूज मीडिया टीवी चैनल वाला बनो। हालात को ये सब गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी, गोदी मीडिया ये सबसे मुखातिब नहीं करवाएगी, गोदी मीडिया ये सबको नहीं दिखाएगी। आज आसाम के हालात कैसे हैं कि मरे हुए इंसान को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। 800 घर है मेरे भाई, 800 घर हैं। 800 घरों में से 800 का 800 घर बर्बाद और तबाह कर दिया गया। और जो 800 घर में रहने और बसने वाले मजलूम गरीब थे, आज वो बेचारे दर बदर भटक रहे हैं। उनको रहने के लिए जगह नहीं, उनको रहने के लिए सर को छुपाने के लिए, वहां के माँ और बहनों को छुपाने के लिए जगह नहीं है। ऐसे हालात आसाम का बना दिया गया है। हम कुछ सबक सीखेंगे मेरे प्यारे मुसलमान। सियासी प्लेटफॉर्म पर आओ, जब तक सियासत में नहीं आओगे तुम्हारे मुस्तकबिल को हल नहीं किया जाएगा। हम ये नहीं बोलते हैं कि तुम MP MLA नहीं बन सकते हो, लेकिन कम से कम उसका साथ तो दे सकते हो कि कौन मेरे हक में इंसाफ कर रहा है, कौन मेरे हक में बोलबाला कर रहा है, उसका तो साथ दे सकते हो ना।
वो तुम्हारे हक में जाकर बोलेगा? याद रखो, समाजवादी, बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो सिर्फ और सिर्फ एक हो गए हैं। बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी, जितने के जितने कांग्रेसियां हैं, ये सब के सब एक हो चुके हैं, एक हो चुके हैं मुसलमानों को खत्म करने में। लेकिन मुसलमान इस चीज को नहीं सोच रहा है। अपने मंसूबे को पहचानो, अपने आप को पहचानो मेरे प्यारे मुसलमानों। वीडियो बहुत लंबी होते जा रही है, बातें बहुत है, बोलना बहुत है, आपके सामने बहुत रखना है, लेकिन वीडियो लंबी हो जा रही है, आप तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए मेरे भाई जरा गौर करो, आपको सोचना और समझना बेहद जरूरी है। अगर तकलीफ महसूस हो हमारे नौजवान भाइयों को, तो जरूर वीडियो बनाकर शेयर करेंगे, एक दूसरे को अपनी वीडियो पहुंचाएंगे। और ये जो मेरी वीडियो है हमारे प्यारे मुसलमानों तक, बल्कि हमारे हिंदुस्तानियों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारी जो जिम्मेदारी तो हमने अदा कर दिया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों को सुनाना। अगर मेरी वीडियो देखकर आपके दिल में तकलीफ और तड़प महसूस किया हो, तो आप जरूर एक दूसरे को ये वीडियो दिखाएंगे। आपको बेहद समझ में आई होगी हमारी बातें कि हमको करना क्या है, ऐसे हालात में हमको किस तरफ जाना है, ऐसे हालात में हमको किस मोड़ पर खड़े रहना है। आज हमारे प्यारे मुसलमानों के सामने वाक़यात हो। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, मेरे परवरदिगार हमारे मुसलमानों की हिफाजत कर। आज हम बेबस हैं, बेसहारा हैं, मजबूर हैं मेरे मौला, हम लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी बर्बादी के, तबाही के आलम हमारे करतूत हैं, हमारे हाथ के ये सब अमाल हैं जो आज हमारे ऊपर मुसल्लत हो रही है। अल्लाह हमारे मुसलमानों की हिफाजत कर, और तमाम के तमाम जो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो हमारे मुसलमान भाई हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत कर और मुसलमानों की हिफाजत कर। अल्लाह हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनको जालिम हुक्मरानों के नजर फरेब से बचा। और मैं प्यारे मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि आप सोचो, इस वीडियो को शेयर करो और बेहद मुसलमानों तक ये वीडियो को पहुँचाओ। मेरे प्यारे मुसलमानों, अस्सलाम वालेकुम।